ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया। हमने कवर किया ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, फिजिकल कैपिटल के साथ उसका डिफरेंस क्या है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। आज हम फर्दर कवर करेंगे। सबसे पहले हम आज देखेंगे द डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हमारे क्या क्या डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, हमारी कितनी डेवलपमेंट एक्चुअल में हुई है, ये हम आज नोटिस करेंगे। हम शुरू करते हैं रियल पर कैपिटा इनकम से। 1951 में 5708 5,708 रुपये। इट इंक्रीज टू 2009 में 33,843। प्लीज़ रिमेंबर ये हम रुपीज़ की बात कर रहे हैं। सो एक्चुअली देयर इज़ अ 6-fold इंक्रीज। क्रूड डेथ रेट पर 1000 में कितने लोग मर जाते थे, पर 25.1, अब इट हैज़ रिड्यूस टू 7.2। सो हेल्थ सेक्टर हैज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड, इवन द इकोनॉमिक सेक्टर हैज़ इम्प्रूव्ड इन इंडिया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 146। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी, एक साल के अंदर अंदर बच्चा जो डेथ हो जाती है, एंड इट हैज़ रिड्यूस टू 4.7। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मेल फीमेल 37.2 36.2 62.6 64.2। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। लिटरेसी रेट, अगर एक मेल फीमेल एक पेरेंट लिटरेट होगा सो उसके बच्चे भी लिटरेट होंगे। 74% लिटरेसी रेट हो गया 9-10 में। अगर हम अब आज की बात करें तो अनदर 10-11-12 ईयर्स में इट माइट हैव इंक्रीज टू एटलीस्ट 7-8%, राइट। सो ये 74 से बढ़ के अब 82% 83% के आसपास हो गया रेट, राइट। सो दिस इज लिटरेसी. So the rate is it is around 82% for the males, and around 68 to 70% for the females. So the rate has actually improved. 16% से 74% हो गया है. So there is around 5-fold increase in the rate of literacy in India. Okay. Next, GDI of selected countries, gross domestic income of selected countries. So सबसे पहले श्रीलंका 2014 में मेल फीमेल HDI वैल्यू क्या थी, राइट। लुक एट दीज फिगर्स। GNI पर कैपिटा 54,000 फॉर द फीमेल्स एंड 14,307 फॉर श्रीलंका, 10,000 एंड 14,000, राइट। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न वी आर वे बिलो GNI के केस में 2116 and 8656, which is way below than other countries. As far as females is concerned, so we are little ahead of Pakistan and Bangladesh, certainly in case of males as well, right. But the ratio of Sri Lanka is quite high for the males. As far as males is concerned, even they are more or doubly better than Indian women as far as GNI per capita is concerned. Mean years of schooling 10.7 10.9. See, India में 3.6 only, 7.2 only. Expected years कितना हम expect करते हैं, they expect 14.2 and 13.3. In case of India it is 11.3 and 11.8. See, we are talking of countries, I'm deliberately comparing it with countries like Sri Lanka. Though the population is very less, but their area is equally less, and their economy is way below than actually as far as Indian economy is concerned. So lot to do as far as India is concerned, right. Human capital formation. Now human capital formation क्या होता है? ये एक process है जिसमें आप acquire करते हो and increase the number of persons, right, who have the skill, the education and experience that is essential for the economic and political development of a country. किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए जो स्किल, जो एजुकेशन और जो एक्सपीरियंस चाहिए उसको आप कलेक्ट करते हो, एक्वायर करते हो, इंक्रीज करते हो, ऐसे बंदे जिनके पास ऐसा स्किल हो, इसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की अगर मैंने एग्जांपल देनी है तो मैं क्या बोलूँगा, एक देयर इज अ पीस ऑफ लैंड, उस पीस ऑफ लैंड पे आप एक स्कूल डेवलप करते हो, right. For example, the cost of the land was 1 crore, and now you develop a school. After developing a school, the cost of land increases to say 10 crore. That is the physical capital formation. What happens in case of humans? Human capital formation के case में the skill, the experience, the education that they gather, it is important for economical and political development of the country.
So, certainly, education is the most powerful weapon that we can use to change the world, right? So, what are the things that we require? We require the ability, the skill, and the knowledge. Kisme? In the people. Now, human capital and human development में क्या फ़र्क है? Human capital considers education and health सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाएँ. किसी की एजुकेशन अच्छी होगी तो वो नया स्किल, नया एक्सपर्टीज़ ले लेगा. फॉर एग्जांपल आजकल एआई आ गया. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन लेगा? प्राइमरीली जिसका एजुकेशन होगा, जिसको पता होगा उसका इंपॉर्टेंस का, जो उसका फ्यूचर अंडरस्टैंड करता होगा. एंड सेकेंडली, जो बंदा हेल्दी होगा वही बंदा अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के एफर्ट्स करेगा. Now, what is human development? Human development is based on the idea that education and health are integral to human well-being. जो भी हमारी एजुकेशन है, जो भी हमारी हेल्थ है, वो इंटेग्रल है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन वेलबींग के लिए. क्योंकि ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जो बंदा अपनी, जो भी ह्यूमन बीइंग, जो भी लोग अपनी एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो ह्यूमन की वेलबींग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, जब उनके पास लिखने की और राइट करने की एबिलिटी होती है, ओनली देन दे कैन हैव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. हियर इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. सो सबसे पहले कंसेप्ट, ह्यूमन कैपिटल इज़ अ वेरी वेरी नैरो कंसेप्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट. डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि ब्रॉडर आउटलुक, राइट. ह्यूमन कैपिटल इज फोकस्ड ऑन ह्यूमन कैपिटल, इंक्रीजिंग द स्किल एंड एक्सपर्टीज ओनली, मीन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. सो ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन एंड हेल्थ को एज ए मीन्स टू इंक्रीज दी लेबर प्रोडक्टिविटी मानता है. लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटेग्रल टू ह्यूमन वेलबींग, because only when people have the ability to read, write, they have the ability to lead a long and healthy life. खुद के पैरों पे वो तभी खड़े हो सकते हैं when they have the education and they have good health. They'll be able to make other choices they value. जिनको वो अदर चॉइसेस को वैल्यू करते हैं, सिर्फ तभी वो बाकी की चॉइसेस ले सकते हैं इफ़ दे हैव प्रॉपर एजुकेशन एंड हेल्थ. ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एन एंड. जो भी ह्यूमन कैपिटल है वो ह्यूमन बींग्स को मीन्स टू एन एंड ट्रीट करती है. व्हाट इज़ मीन्स टू एन एंड? मीन्स टू एन एंड का मतलब है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो ह्यूमन बींग्स, लोग जो हैं, वो एक तरीका है किस चीज़ के लिए? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी का. बट ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहती है? इट इज़ एन एंड इन देमसेल्व्स, अपने आप में वो एक एंड है. वेलफेयर मोटिव. इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ़ इट डज नॉट एनहांस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर आप जो काम कर रहे हो ना, अगर आप उसकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो तो एजुकेशन और हेल्थ में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब बेकार है. ह्यूमन डेवलपमेंट ये कहता है ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. वेलफेयर कैसे बढ़ेगा? और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो एजुकेशन में और हेल्थ में, इवन इफ सच इन्वेस्टमेंट डू नॉट रिजल्ट इन हायर लेबर प्रोडक्टिविटी. अगर इतनी सारी इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ लेबर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना नहीं है. सो एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू बी हेल्दी एंड लिटरेट. हर एक इंडिविजुअल का जो काम है वो हेल्दी और लिटरेट रहने का है. स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. इंडिया में क्या हालत है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की? द गवर्नमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग द पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन इन रेफरेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट. कॉन्करेंट सब्जेक्ट, तो एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाती हैं. लेकिन एजुकेशन जो है वो प्राइमरीली स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का पार्ट है. Right? So government role is to ensure that the private providers of services like health and education follows the standards as stipulated by the government authorities. हाँ, गवर्नमेंट का रोल इतना है कि जो प्राइवेट एजुकेशन दे रहे हैं, जो भी लोग हैं, हेल्थ है, एजुकेशन, जो भी लोग हैं, वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें जो रिक्वायर्ड हैं बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन लाइक एनसीईआरटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो इंस्टीट्यूट्स को फैसिलिटेट करते हैं एजुकेशन सर्विसेज अलग अलग लेवल्स पे प्रोवाइड करने के लिए एंड टू प्रमोट ग्रोथ इन दी एजुकेशन सेक्टर. अलग अलग लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन सेक्टर में. द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ICMR ये फैसिलिटेट करते हैं मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विसेज को
फैसिलिटेट करने के लिए फॉर दी हेल्थ सेक्टर। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं? सो लेट अस फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहला, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नेशन के स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टाइज। कैसे? बाय इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। सो प्राइमरीली दो ही सोर्सेज होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज एजुकेशन इन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। सम प्रॉब्लम्स दैट कैन अफेक्ट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर्टिकुलरली इन इंडिया। क्या है वो? पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ इंडिया इज मे बिकम द हाईएस्ट पॉपुलेस कंट्री इन दी वर्ल्ड वेरी सुन। सो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिससे रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर पर्सन एंड रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। पॉवर्टी, large portion of population living below the poverty line may not have access to the basic education and health services. So अगर हम लोग अपने आप को 140 करोड़ कहते हैं and we say कि करीबन 20% people are poor, which means 28 crore people are still living below the poverty line. The gender and religious inequality, regional inequality, so these factors can negatively impact the human development levels. There are states जहाँ पे the level of education is very high, above 90% or maybe 95%, but then there are few states जहाँ पे there is inequality, और कई states में ऐसा भी है कि मेल फीमेल का एजुकेशन लेवल भी डिफरेंट है। सो इनइक्वालिटी उस लेवल पे भी है, राइट। एंड देन देयर आर रीजनल इनइक्वालिटीज एज वेल, स्टेट टू स्टेट इट मैटर करता है। लैक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सो कुछ सेक्टर्स में जैसे एग्रीकल्चर मे नॉट रिसीव द ट्रेनिंग टू यूज़ एडवांस इक्विपमेंट्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में, इन सब सेक्टर्स में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है ताकि वो एडवांस इक्विपमेंट यूज़ कर पाएँ। ब्रेन ड्रेन। स्किल्ड वर्कर, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया या बाकी डेवलप कंट्रीज़ में चले जाते हैं। ब्रेन ड्रेन, हमारा पैसा, हमारे रिसोर्सेज। हम लोग यहाँ 20 साल बच्चों को पढ़ाते हैं, 20 साल पढ़ाने के बाद व्हेन दे लीव द कंट्री, व्हाट हैपन्स? जब वो ये कंट्री छोड़ देते हैं तो उन कंट्रीज़ को बना बनाया तैयार रिसोर्स मिलता है, लेकिन 20 साल एफर्ट्स तो हमारे लगे, मे बी सब्सिडी इन एजुकेशन, मे बी सब्सिडी इन अदर सेक्टर्स, जो उस बच्चे ने रिसीव किया वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। वाई? बिकॉज अब वो वापस नहीं आएगा इंडिया में काम करने के लिए। सो ब्रेन ड्रेन, स्किल्ड वर्कर्स जो हैं जब वो अपना होम कंट्री छोड़ देते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हिंडर करता है। इनएप्ट मैन पावर प्लानिंग। प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जो डेवलपिंग नेशंस है ना, वो मे नॉट मेक एफर्ट्स टू इंक्रीज द ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स टू कीप अप विद द डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की ट्रेनिंग उस लोग को, उस ह्यूमन बीइंग को देना ज़रूरी है। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो चीज़ आउटडेट हो गई है, अगर हम उसकी ट्रेनिंग देते आ रहे हैं या हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं और दी मॉडर्न मेथड्स आर नॉट यूज्ड, सो व्हाट हैपन्स? द स्किल acquired by the human may not be the apt skill or the required skill, or may not be the skill which is required in this competent world and to make him competent or competitive for the others. Long process. I just explained it to you that 20 years of education, then taking care of health. So skill enhancement takes time. ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही स्किल एनहांसमेंट हो जाती है, या ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year स्किल एनहांसमेंट इज डन, विच कैन स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। स्किल एनहांसमेंट बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत लंबा। इससे क्या होता है? स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का, राइट। तभी तो है हर क्लास, देर आर 12 क्लासेज इन स्कूल, देन देर आर कॉलेज क्लासेज, देन द प्रोफेशनल एजुकेशन, देन द स्किल्ड एनहांसमेंट इन द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विच हैपन्स। सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। इतना लॉन्ग टाइम के बाद नया स्किल फिर से गैदर करने की टर्न आ जाती है, और मे बी द इकोनॉमिक और द पॉलिटिकल और टेक्निकल और लीगल एनवायरनमेंट चेंजेस देयर आफ्टर। सो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं चेक करना, देखना।
Let's keep the video till here. We'll cover the other things in the next video. इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है? इस वीडियो में प्राइमरीली हमने पढ़ा है कि ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है. ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रॉडर कंसेप्ट है, ह्यूमन कैपिटल उतना ब्रॉडर नहीं है, नैरोअर कंसेप्ट है. ह्यूमन दोनों ही एजुकेशन और हेल्थ पे डिपेंडेंट हैं, राइट. सो देन वी हैव स्टडीड द प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. वी डिड this situation of human capital formation in India. So let's keep the video till here. आप लोगों को जो भी दिक्कत आए इस टॉपिक में, do let me know. I'll clear all your doubts. Take care. Goodbye.